افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے، افغان شہریوں کا ملوث ہونا اور افغانستان سے دراندازی کی کوششیں تشویشناک ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، مہاجرین کی جلد واپسی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی شریک نہ ہوئے۔ صوبائی وزیر خزانہ مزمل اسلم نے نمائندگی کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے مزید کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے حملوں کو پسپا کیا۔ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں، اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا۔ دراندازی روکنے کے لیے سفارتی کوششیں اور مذاکرات کیے۔ عوام سوال کرتے ہیں، حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی؟ اداروں اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے افغان باشندوں کی جلد واپسی یقینی بنائیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا، ملک میں مقیم افغان باشندوں کی مرحلہ وار واپسی کا عمل جاری ہے اور اب تک 15 لاکھ کے قریب افغان باشندوں کو واپس بھیجا جا چکا۔ افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا، کابل کے حکمران بھارت کی گود میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، 2021 سے اب تک 3844 پاکستانی شہریوں کو شہید کیا گیا۔ کل تک ہماری پناہ میں ہماری زمین پر چھپتے پھرتے تھے۔ پاکستان اب کابل کے ساتھ تعلقات کا ماضی کی طرح متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاک سرزمین پر بیٹھے تمام افغانیوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ کابل میں ان کی اپنی حکومت ہے۔ اسلامی انقلاب آئے 5 سال ہو گئے۔ پاکستان کے ساتھ ہمسایوں کی طرح رہنا ہوگا۔ ہماری سرزمین اور وسائل 25 کروڑ پاکستانیوں کی ملکیت ہیں۔ دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ خوددار قومیں بیگانی سرزمین اور وسائل پر نہیں پلتی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا وفاق کو انکار، بانی پی ٹی آئی سے پالیسی گائیڈ لائنز کے لیے بغیر وزیر اعظم کے اجلاس میں شرکت عوامی مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا دی۔ کہا، وفاقی حکومت کی زراعت اور افغان مہاجرین کے حوالے سے میٹنگ میں ذاتی طور پر شرکت سے معذرت کی۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے بانی پی ٹی آئی کو ووٹ اور مینڈیٹ دیا۔ جب تک میں بانی پی ٹی آئی سے مل کر پالیسی گائیڈ لائنز نہیں دیتا، کسی ایسی میٹنگ میں شرکت صوبے کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ تمام صوبے اجلاس میں شریک ہوئے، سہیل آفریدی نہیں آئے۔ امن و امان کے حوالے سے سیاست کرنا افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، وزیر اعظم کی صدارت میں افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام متعلقہ ادارے اور صوبوں کی نمائندگی موجود تھی، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ امن و امان کے حوالے سے اجلاس میں عدم شرکت افسوسناک ہے۔ عطا تارڑ نے کہا، افغان پناہ گزینوں کی واپسی ایک نازک معاملہ ہے، جس پر تمام متعلقہ فریقین کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ مذہبی جماعت کی ہڑتال کی کال کو عوام نے مسترد کر دیا۔ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے اپنی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے وفاق کو مراسلہ ارسال۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں، حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے والے ملک کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ احتجاج کے نام پر سڑکیں اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ غزہ کے نام پر کال اس وقت دی گئی جب وہاں جنگ بندی ہو چکی تھی۔ مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا قابل قبول نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں اس تنظیم کو شدت پسند کہا تھا، آج اس کے حق میں احتجاج کی کال دی۔ کوئی بھی حکومت ہو، لاشوں کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ پنجاب میں کوئی نیا اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ کسی کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے، وہ اقوام حکومت کے پاس جمع کروائے۔ ملک کے جید علماء، مذہبی جماعتوں اور تاجر برادری نے ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ تحریک لبیک کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت۔ اہم مذہبی رہنماؤں، تاجر کمیونٹی اور نامور شخصیات نے غیر ضروری ہڑتالوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ انتشار کی بجائے استحکام کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ کہا، موجودہ حالات میں احتجاج اور ہڑتال نہیں، اتحاد و یکجہتی ہی ملک کی ترقی کا زینہ ہے۔ عوام افواہوں اور منفی بیانیے سے دور رہیں اور امن و استحکام۔ بدامنی، انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے جمعیت علماء پاکستان کے سیکریٹری جنرل علامہ شاہ اویس نورانی کی ملاقات۔ شرپسندوں سے سختی سے نمٹنے، بے گناہوں کو رہا کرنے اور کسی مدرسے کو بند نہ کرنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مذہبی ہم آہنگی اور صبر و تحمل کے فروغ میں علماء کرام کی قابل قدر خدمات ہیں۔
तहरीक लब्बैक के 2016 से 2025 तक पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 11 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 1648 मुलाजमीन जख्मी हुए। 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर जबकि 202 शदीद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस की नुकसानात की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी जाँ बहक जबकि 54 जख्मी हुए। एहतजाज में 97 गाड़ियां तोड़फोड़ करके मुकम्मल नाकारा और 2 गाड़ियां जलाई गईं। पुलिस की 10 इमारतों को नुकसान पहुंचाया। आलमी बरादरी का पाकिस्तान की इक्तिसादी पॉलिसियों पर एतमाद मुस्तहकम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। IMF के साथ स्टॉप लेवल मुआहदे से आगाह किया। कहा न्यू डेवलपमेंट बैंक में पाकिस्तान की रुकनीत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। जापान बैंक बराए बैनुल अक़वामी ताउन के गवर्नर से मुलाकात में रेकोडेक मंसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत के बाज़ाब्ता ऐलान को सराहा। वज़ीर ख़जाना का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से भी खिताब। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। टमाटर की कीमत ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर 82 रुपए फी किलो महंगे हुए। मुल्क में फी किलो टमाटर की औसतन कीमत 328 रुपए तक पहुंच गई। प्याज की फी किलो कीमत 8 रुपए 27 पैसे का इजाफा। अंडे फी दर्जन 7 रुपए 2 पैसे महंगे हुए। गंदम का 20 किलो आटे का थैला 30 रुपए 55 पैसे महंगा हुआ। जलाने की लकड़ी, चीनी, LPG का घरेलू सिलेंडर, मटन, दाल माश, दाल मसूर, खुश्क दूध भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। चिकन, केले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों और फराहमी पर इजलास। इसाक डार का अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी पर इत्मीनान का इजहार। बिला तातुल फराहमी चीनी बनाने की हिदायत। वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राब्ते पर जोर। इजलास में वज़राए खुराक, तवानाई और इक़्तिसादी उमूर समेत अहम हुक्काम की शिरकत। मुत्तहदा अरब इमारात और पाकिस्तान में फर्स्ट वुमेन बैंक के निजकारी का मुआहदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा UAE से मुआशी ताल्लुकात में इजाफा होगा। शेख ज़ैद बिन हमदान को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। शेख ज़ैद पाकिस्तान के सच्चे और मुखलिस दोस्त थे। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से काबीना में शामिल नए वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मंशा उल्लाह भट्ट की मुलाकात। पार्टी उमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। सूबाई वज़ीर मेहनत को कहा कि मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाई जाए। सूबाई वज़ीर कानून ने कहा कि चंद माह की कलील मुद्दत में सूबे भर में अमन व अमान की फिजा बेहतर हुई। विफाक के बाद पंजाब में भी PTI अरकान असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली के तमाम अराकीन ने कायमा कमेटियों और चेयरमैनशिप से इस्तीफे दिए। अराकीन असम्बली 8 कमेटियों की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। 100 से ज़ायद तहरीक इंसाफ के अराकीन असम्बली ने इस्तीफे दिए। मजमूई तौर पर 43 कायमा कमेटियों के मेंबरान ने इस्तीफे दिए। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने कहा अराकीन ने बानी PTI का सर फख्र से बुलंद किया। अराकीन अपने हल्कों के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। बानी PTI ने बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम की खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शमूलियत रोक दी। सलमान अकरम राजा ने पैगाम वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को पहुंचा दिया। कहा बानी का पैगाम है कि वज़रा और मुशीरों के लिए पार्टी तंजीम से मुशावरत की जाए। खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत नई काबीना में नए चेहरों को लाने की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बानी PTI से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस को खत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और वजारत दाखिला को वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात करवाने की हिदायत देने की इस्तदा। वज़ीर आला ने बानी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। काबीना तश्कील और गवर्नेंस के हसास मामलात पर बानी से रहनुमाई लेना लाजिम है। वजारत दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को मुलाकात के लिए पहले ही दरख्वास्त दी जा चुकी। बानी PTI से फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन से मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। मजीद 2 वज़रा अकबर इब्राहिम और माजिद खान ने काबीना से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काबीना से अलग होने का ऐलान करते हुए अकबर इब्राहिम ने कहा कि मैं और माजिद खान काबीना से इस्तीफे का ऐलान करते हैं। रियासत के हालात ख़राब किए गए और पस पर्दा कुछ और था। अनवारुल हक के साथ मजीद चलना इस रियासत के साथ जुल्म होगा। पीर मजहर सईद पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके।
मुहाजिरीन वज़रा ने जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी की 12 मखसूस नशिस्तों के खात्मे की तजवीज़ गैर आइनी करार दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत में लिखा कि ये नशिस्तें 1947 के महाजर ख़ानदानों की नुमाइंदगी करती हैं। कश्मीर काज की असास कमज़ोर करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। आज़ाद हुकूमत की बुनियाद रियासत के तमाम हिस्सों की नुमाइंदगी पर रखी गई थी। मुहाजिरीन वज़रा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कश्मीरी मुहाजिरीन की आइनी नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि हम नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले कम करना चाहते हैं। प्राइमरी से आला तालीम तक तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। तलबा के लिए दुनिया की 200 मेयारी जामियात के दरवाजे खोल दिए। सिविलियन शहदा अक़लियतों और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी खुसूसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी प्रोग्राम है। बिलासूद कर्ज प्रोग्राम एक इनकलाबी कदम है, इस पर जल्द अमल दरामद होगा। वज़ीर आला से साबिक वज़ीर क़मर ज़मान कायरा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत के बेटे मुस्तनसर को बाजियाब करवा लिया गया। मुस्तनसर को उनके वालिद समेत कुछ अर्सा कबल करदम तंजीम ने अगवा किया था। अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर अफजल बाकी ताहाल बाजियाब न हो सके। खराब मुआशी सूरत हाल के बायस बिरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों की तादाद में इजाफा। वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट का वसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। एजेंट माफिया लाखों रुपए बटोरने लगा। यूरोपीय ममालिक के वीज़ा अपॉइंटमेंट सेंटर एजेंट माफिया की नज़र पाकिस्तान शहरियों के लिए स्पेन वीज़ा का वसूल मुश्किल हो गया। हज़ारों शहरी मुश्किलात का शिकार। दरख्वास्त गुजारों का इल्ज़ाम है कि वीज़ा सेंटर के बाद अफसरान और एजेंट्स आपस में मिले हुए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के वाला डिवीजन बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के साथ जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो बेंच में शामिल। केस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया था। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की अमेरिका में आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशा वराना तरबियत और मेरी टाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा। सियासी अस्करी उमूर के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात की। अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब में नेवल चीफ ने इलाकाई मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मेरी टाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। सैलाब से जहां भाग होने वालों की तादाद 1000 तक पहुंच गई। 892 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पंजाब में 2,13,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 2200 से ज्यादा तालीमी इदारे सैलाब से मुतासर हुए। सैलाब से 1 मिलियन टन चावल की फसल भी मुतासर हुई। ज़राई शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद बढ़ा है। पंजाब के सैलाब से मुतासरा 3 अजला में 100%, बाकी इलाकों में 60% सर्वे मुकम्मल हो चुका। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया की प्रेस ब्रीफिंग। कहा 3,73,000 में से 1.5 लाख अफराद की वेरिफिकेशन हो चुकी। 75,000 मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। जल्द अदायगियां शुरू हो। इस्लामाबाद हाईवे और रावलपिंडी मरी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियां घंटों ट्रैफिक में फंसी रहीं। फैजाबाद से 6 रोड तक गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। फैजाबाद फ्लाईओवर से इस्लामाबाद और मरी जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद। मुतबादिल रास्तों पर भी ट्रैफिक का दबाव। मोटरसाइकिल सवारों को भी मुश्किलात। बदतरीन सूरत हाल के बायस शहरी कई घंटे तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहे।